Hello beauties, welcome back to my channel Forever 21. So I am back with this new video जिसमें आज हम girly talks करने वाले हैं. Yeah, I'm very nervous before starting this video because जो आज का content है, ये जो video जिस बारे में है, that is a thing जिसके बारे में we guys don't used to discuss. So yeah. सो द टॉपिक इज़ टिप्स टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन. हम कैसे जो हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको मेंटेन कर सकते हैं. So this video is all about that. So I'm giving you 5 tips which are very useful for every girl, especially for teenage girls, so that वो अपनी menstrual cycle, अपना menstrual flow और उनका menstrual health सब कुछ अच्छे से maintain करके एक healthy reproductive health उनको मिले. So let's start our video. So the first step is change your sanitary napkin every 4 hours. What happened is some people used to whatever sanitary napkin they were using, तो वो उसको बहुत long period of time तक use करते हैं, which is not at all good. Try to change your sanitary napkin within 4 hours because after 4 hours उसमें बहुत ज़्यादा infection आ जाता है which can lead to reproductive diseases. It can affect our reproductive health. So try to change your sanitary napkin every 4 hours. Don't wear the same sanitary napkin for more than 8 hours. आप कोई भी sanitary napkins को please 8 hours से ज़्यादा wear मत कीजिए. It is very important for our reproductive health. Okay, so the another tip is clean reusable pad properly. अगर like some of the people are using reusable sanitary napkins, if you are using such kind of things, then try कि आप जो भी sanitary napkin use कर रहे हैं, you should have to clean it thoroughly so that उसमें कुछ भी कंटेमिनेटेड होने का, उसमें कुछ भी इन्फेक्शन होने का चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाए. Now, the third tip is keep your vaginal area clean, especially during the menstruation time, during periods. Try to keep your vaginal area clean because बहुत blood flow होता है during menstruation. And try to use warm water and diluted soap. Soap को directly don't use over your vaginal area. Try to use this soap, diluted soap. Diluted soap means आप soap को water में dilute करो so that उसका वो mild हो जाए, वो उतना ज़्यादा concentrate नहीं रहे. So आप उस way में अगर use करेंगे soap को to clean your vaginal area, then it is very useful. ओके. एंड इफ़ आप लोग कोई भी वजाइनल वॉशेज़ यूज़ करते हैं, लाइक देयर आर मैनी वजाइनल वॉशेज़ अवेलेबल इन द मार्केट, ट्राई कि आप वो नहीं यूज़ करें इफ़ अनलेस और अनटिल इट इज़ रिकमेंडेड टू यू बाय योर डॉक्टर. अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है देन ओनली यूज़ योर वजाइनल वॉशेज़ और whatever things you were using. Okay, actually why I am saying no to you फॉर यूजिंग दीज वजाइनल वॉशेज़ बिकॉज हमारा जो बॉडी है उसमें एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज़्म होता है, स्पेशली इन आर वजाइना. इट हैज़ अ सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज़्म सो दैट ये जो वॉशेज़ हैं ये उतने ही ज़्यादा गुड नहीं होते. सो वजाइना के पास ऑलरेडी अपना मैकेनिज़्म होता है टू वॉश ऑफ द बैक्टीरिया एंड ऑल, सो वो ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है. सो ट्राई करें कि आप ये सब नहीं यूज़ करें. एंड इफ़ यू वांट टू नो, इफ़ यू नो कि जो वजाइना होता है उसका ऑलरेडी अपना एक पीएच होता है, अगर हम कुछ भी हार्श चीज़ या कुछ केमिकल उस पर यूज़ करेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसका जो पीएच लेवल है वो चेंज हो जाए. एंड इफ़ पीएच चेंज हो जाएगा तो इट कुड बी एसिडिक और बेसिक, सो इट्स नॉट गुड. ट्राई टू कीप इट न्यूट्रल. उसका अपना ही एक पीएच है, ट्राई कीजिए कि आप उसको मेंटेन रखें. Now, the fourth tip, never use two pads simultaneously. Women experiencing heavy flow tend to use two sanitary pads at one go to control the flow and prevent staining of the clothes. Guys, इफ़ आपको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो भी होता है, स्टिल डोंट यूज़ टू सैनिटरी नैपकिन्स. यूज़ वन सैनिटरी नैपकिन एट वन टाइम. टू सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करना इज़ नॉट गुड. इट कैन लेड टू इन्फेक्शन. एंड ऐसा नहीं होगा कि अगर आप टू सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करेंगे तो आप स्टेन से प्रिवेंट हो जाएंगे. ओके, ट्राई टू यूज़ गुड क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन्स जिनमें अच्छा फ्रेगरेंस भी आता हो बिकॉज ड्यूरिंग मेंसेस स्मेल भी आता है. सो यूज़ समबडी जिसका अच्छा फ्रेगरेंस हो.
Okay, and staining cloth की अगर you are having the problem, so try to use the ultra sanitary napkin, so उससे staining का problem reduce हो जाता है. Okay, don't use two sanitary napkins simultaneously. अगर आपको ज़्यादा staining का problem है, आपको heavy flow है, so आप one use कीजिए, then आप within 2 hours ही change कर लीजिए. Nothing, it's not a big deal. Okay, now the next step is wear comfortable clean undergarments. जो भी undergarments you were wearing, मेक श्योर कि वो बहुत ही कंफर्टेबल हो एंड कॉटन फैब्रिक का हो, देन इट इज़ लाइक एन ब्लेस, बिकॉज ड्यूरिंग मेंसेस ऑल्सो एंड नॉर्मली ऑल्सो, अगर आप नॉर्मली भी वेयर करते हैं, लाइक वी ऑल वेयर अंडर गारमेंट्स, सो जो भी अंडर गारमेंट्स यू वर वेयरिंग, ट्राई टू find those ones which are of cotton fabric, जो super soft हो and comfortable हो. And ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप ट्राई करिए कि आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने एंड मैसिव एक्सरसाइज अवॉइड करिए. ट्राई टू ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर, बिकॉज अगर हम ल्यूक वार्म वाटर पियेंगे तो चांसेस है कि हमारा पेन कम होगा. एंड ड्यूरिंग मेंस मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, सो ट्राई टू मसाज कीजिए उस एरिया पर, सो इट विल रिड्यूस. ओके, देन इवन आई विल सजेस्ट यू कि बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स डोंट वेयर देम, बिकॉज हमारी स्किन भी ब्रीथ करती है. अगर हम टाइट अंडरगारमेंट्स वेयर करेंगे तो हमारा स्किन अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएगा एंड इट विल कॉज प्रॉब्लम टू अस. सो ट्राई नॉट टू वेयर दोज टाइट अंडरगारमेंट्स, ट्राई टू वेयर लूज एंड comfortable undergarments. Okay, thank you for watching my video. Kindly share it and subscribe my YouTube channel if you are new to it. And thank you so much. If you want any kind of video like this, so you can comment me below in the comment box. Thank you guys.